Hi everyone, welcome to United Lal Shaitan. So सीजन खत्म हो गया है तो ट्रांसफर का टाइम आता है. So we all decided to start this weekly series of transfer gupshup of the week. मेरे साथ है चेतन और मन्यु. So we are going to talk about some of the hot rumors which is going around the transfer for United. Yeah. तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is Benoit Bachel, like if I'm Benoit pronouncing Badiashile. He's Badiashile, a something French like player. that. Yeah. तो ये फ्रेंच प्लेयर है, मोनाको के लिए खेलते हैं. ही इज लाइक 19, जो एक अच्छी एज है. बेस्ट पार्ट है कि ही प्लेज ऑन द राइट ऑल्सो, लाइक सेंटर डिफेंस एंड राइट ऑल्सो, लाइक ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. 16 गेम्स खेले हैं मोनाको के लिए इस पूरे सीजन में, एंड हिज परफॉर्मेंस हैड बीन डिसेंट. व्हाट डू यू थिंक, लाइक चेतन मनी, डू यू थिंक ये डेलो जैसा एक ट्रांसफर हो जाएगा वेर समवन इज potential to be good, but he's not good enough right now? What do you guys think? I think डालो को जब हमने खरीदा था, डालो was not a regular first team player anyway. He was playing in Mm-hmm. the B team. ठीक है, Mm-hmm. that is first point. Second, Benoit Badiashile का ये है, he's played 16 games because he was brought in when one of the Monaco defenders got injured, I think. And Mm-hmm. once he made that debut, he's played all remaining 16 games. ठीक है, Mm-hmm. he's young, pretty young. अपने पास एक्सेल टॉन्जी भी ऑलरेडी है, पर हमने Mm-hmm. इस सीजन देखा कि ही सो प्रोन टू इंजरीज. Injury prone. Yeah. लाइक फुल सीजन ही स्पेंड इंजर्ड, पाई भी भाई इंजर्ड होता रहता है. ऐसे में Mm-hmm. हमारे पास सिर्फ मगवायर और लिंडलॉफ आर द ओनली रिलायबल सेंटर बैक्स. Mm-hmm. लुकिंग एट लाइक इसके बारे में ज़्यादा स्टैट्स हैं भी नहीं बेनोआ के बारे में अदर दैन दीज 16, बट 16 सीनियर गेम्स इज नॉट बैड. He's tall, 194 centimeter height, yeah, right? So Mm-hmm. Yep. he's young. He's left-footed, which we want. We need a left-footed player. Left-footed. Yep. Exactly. I Good like point. this rumor. It looks like one of those like जहाँ पे और कोई लिंक नहीं है, जैसे ब्रूनो का केस हुआ था. एंड ही लुक्स Mm-hmm. यंग. आई होप इट्स ट्रू. और काफ़ी सोर्सेज से ये आ भी रहा है. Mm-hmm. मे बी देयर इज समथिंग इन इट. वुड बी अ Mm-hmm. गुड साइनिंग अकॉर्डिंग टू मी. Yeah. Yeah. So Chetan, like, what do you think? Like, could be a good, like, if we think about going towards a left-footed center back, जो ओले ने एक क्लिप भी आई थी कि नेथन एके को बोला था कि we wanted left-footed center back, something like that. तो कितना amount do you think is fair enough for a 19-year-old teenager, have a potential not proven yet, from France? 2025 के अंदर अगर आ जाता है 100% वी शुड गो फॉर दिस गाय. Yep. पार्ट ऑफ द रीजन इज के वाइल लीग वन को हम लोग ज्यादा रेट नहीं करते हैं. लीग वन का प्राइमरी फोकस इज दैट दे जस्ट ट्राई टू अटैक एवरी सिंगल टीम डज दैट. उसके अंदर ही हैज रियली गुड रिकॉर्ड ऑन टैकल्स, ऑन हिज फाउल्स, बहुत ही रेयरली ऑफसाइड्स, गुड क्लियरेंस रिकॉर्ड. एक्चुअली इसका क्लियरेंस नंबर्स आर एज गुड एज any of our center backs. Correct. So someone who is this young and energetic or just 16 games consistently खेला at the age of 19, that's what puts him above Axel Tuanzebe, who also I rate well, पर वो काफी injury prone है. अगर Okay. 2022 में आता है bench strength, we have always maintained के center back position में we need a reliable person coming off the bench who can learn from the current center back and someday replace Victor Lindelof or Harry Maguire. I think definitely we should go for him अगर उस क्योंकि AS Monaco is currently struggling with finances and everything. If we can rate them, we should and get him. आई थिंक अग्री टू योर पॉइंट. आई थिंक जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है और फिर इसकी एज को देखते हुए आई थिंक वी शुड गो फॉर इट. एंड सोर्स भी इस जो पूरे र्यूमर का है डेली मेल से आ रहा है. सो आई थिंक वी कैन से बाट में दम तो है, बिकॉज नोइंग कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है और Yep. प्लेयर जैसा है. सो आई थिंक इट इज फेयर टू पुट इट इन दी बात में दम तो है. एंड आई थिंक ही कुड बी अ गुड फिट इन टू द टीम. I think we can all agree with that. Yep. Yeah. So, coming to the next one, Alex Telles from Porto. So basically, he's a left-footed player. Like he plays on the left side. And what's your take, like Chetan Manu? Like, could he be the good? Like, मैंने उसको सिर्फ अपनी FIFA team और foot team में रखा है. Like, I've never seen him play. So like, in that he's really good. So Yeah. what do you guys say about him? I like him. FIFA वाली बात I agree. Yeah. He was in a lot of FIFA team of the weeks. But Yep. talking about the actual player, I think for Porto he's done well. I think I saw some clips on YouTube about him, and again, yeah, he's a left back. He's quite dynamic. He's Brazilian first of all. He's also very young, like relatively young. He's what, 28 years old, Yep. right? So
which is still okay. वो इतना young Yeah. भी नहीं है. Mm-hmm. But he's played what 31 games this season. He has 11 goals. Yeah, that is impressive. That is very interesting one, which may have interested United. So he has 11 goals, and उसके 8 assist है from that position. For a team like Porto, who I don't think they play like that intense game, No. and he has good passing accuracy and stats. So he's that mold जो आजकल fullbacks का mold है. You don't just expect them to defend, you expect them to attack. Yeah. Rumors इतने हैं नहीं. I think this is a Lapetlo one, but I wish we went for him. Yep. Do you agree with that, Chetan? यार हाँ मतलब अगर हमें लेफ्ट पोजीशन में किसी को कहीं का लेफ्ट डिफेंसिव पोजीशन में वी कैन स्ट्रेंथन वी शुड, क्योंकि जब भी वी गेट शॉ इंजरी वी डोंट हैव अ गुड रिप्लेसमेंट. ब्रैंडन विलियम्स इज ऑसम बट इज प्रीटी यंग एंड कभी-कभी लगता है कि उसका अटैकिंग इंटेंट थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड होता है. तो दिस गाय इज स्ट्रांग इन क्रॉसिंग, उसके पास बहुत सारे की पासेस है, सेट पीसेस लेने में एक्चुअली ही इज रियली स्ट्रांग, गुड वेरी गुड फ्री किक्स ही टेक्स. I don't know हमारा लिंकेज उसके साथ कितना स्ट्रांग है, पर honestly left back anyone who is good at crossing and has got 11 goals in the 5th best league in Europe, I would take him. I don't know कितना valuation कितना है इसका, anyone know? I think around 25-30 million, but still I believe it's going to be like I'll put it in the Lapetlo category only क्योंकि it doesn't make any sense क्योंकि जो ओले का विजन है उसमें ल्यूक शॉ and Brandon Williams have cemented their place as like first team player and the bench player. So I don't know how he can fit in. Even he won't agree to play in a team where he would be like a third choice left back. He doesn't play in the right. He has never played. So I don't think he'll be I highly doubt. I think he'll be a second choice if he comes in. Otherwise we won't buy him. वैसे भी यूनाइटेड की प्रायोरिटीज अभी अलग है. I don't think left back is a So like जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जैसे ट्रांसफर सीजन चालू होता है यूनाइटेड 1000 प्लेयर के साथ लिंक हो जाता है. So सबके साथ लिंक हो जाता है. So basically in this video series we are trying to narrow down and come up with reliable sources क्या हैं और उसमें से किसकी probability ज्यादा है. तो ये एक एलेक्सिस टेलेस का नाम बहुत ज्यादा फैल रहा था, which it seems like it's all like in the air. इसका कुछ reality से कुछ लेना देना नहीं है. So I think we can comfortably go ahead with our like next list for this week. Is Milan Skriniar, like if I'm pronouncing it correct. Basically center back who plays, जब मैं उसका heat map देख रहा हूँ, he plays on the left and right both. Like he's a ball playing kind of a center back है. And मिलान के लिए वो I guess third सबसे ज़्यादा games खेला है, अगर हम इस season की बात करें तो. And then he has some good touches, key passes भी उसके कुछ अच्छे हैं. So what do you guys think? Like, do you think जहाँ पे अभी Lindelof के ऊपर बहुत ज़्यादा we are doubting for how he plays and we don't have any backup for Lindelof and Maguire. Do you think this guy can fit in? Or एक और tricky question, or would you be going for Smalling instead of taking this guy? Hands down, Milan is like Skriniar is better than all three, Smalling, Maguire and Lindelof, and he's the main centre back into Milan. जितना मैं सोच रहा हूँ कि यार विश कर रहा हूँ ये रूमर सच है, वी आर गोइंग ऑल इन फॉर हिम, इट डजंट लुक लाइक ही इज अ की प्लेयर फॉर देम. ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन इटालियन लीग, व्हिच इज सेइंग अ लॉट. ही इज वेरी गुड विद लॉन्ग बॉल्स, व्हिच इज समथिंग वी हैव बीन लुकिंग एट इन आवर टीम. अभी तक सिर्फ मैग्वायर कर पाता है, एंड आई थिंक ही वुड, if we had both our centre backs good on the ball doing those long passes, that will be really good. He's a typical, like he's the ideal defender, to be honest, जो हमें fit करेगा as an ideal partner for Maguire. I wish we were in for him. मुझे नहीं लगता that it would happen. I think it's just that maybe he's after a new contract. Not sure if his contract is expiring or what. So yeah, like if I know it correctly, इसका source जो है इस news का is Classio Mercato, ये Italian newspaper है. So what do you think, like Chetan, like do you rate this rumor to be like जो tangible हो सकती है, या फिर ये फिर किसी मार्केट में वो न्यूज़पेपर बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ डाल दी गई है? I don't know if this news is true because I don't know why they would want to sell him. Firstly, that's one of the first things. क्योंकि कितना कैश आउट कर सकते हैं इसके अंदर, that's also doubtful. Center back positions are not, except Harry Maguire, 90 million positions. तो मुझे पता भी नहीं कि उसको बेचना चाहते हैं लोग. Having said that, if we were in for him, we should go in with all gusto and buy him.
क्योंकि not just the fact that he's just really good going forward, he is also like a really solid defender. जो you know that whole thing we say about let's build from the back. He's the build from the back guy for you. Yep. Also, he has got a very good relationship with Matic, so Yeah. that would 100% help us. Yep. So because you know communication between your CDM and your defenders is always a good thing, and they have a really good relationship. अगर दोनों का कुछ साथ में एक टीम में बिठा सकते हो, that would be good. Just like एक दिन सैंचो और रैशफोर्ड की जैसे होगी पेयरिंग, वैसे इन दोनों की होगी. और इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो ये इनकी टीम ने इंटर ने 30 मिलियन में इसको लिया था इन 2017. सो आई एम होपिंग इट वुड बी लाइक मोर देन 50 मिलियन इवन इफ वी गो फॉर इफ रूमर्स आर ट्रू. तो 50 से 60 मिलियन एक डिफेंडर के लिए. डू यू गाइस थिंक जब हम इतना डेस्परेटली राइट विंगर सैंचो के पीछे जा रहे हैं, डू यू थिंक वी शुड बी इन्वेस्टिंग? यूनाइटेड ने जब से मगवायर लिया ना 80 में, अगर हम किसी भी सेंटर बैक के लिए जाएंगे हम 80 बोलेंगे. हम लोग 80 मांगने वाले हैं. Exactly. बल्कि अब मगवायर को देख के कहेंगे तो इसके लिए तो भैया 100-120 तो दे ही दो. एंड या अभी हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम जाके किसी का बेस्ट प्लेयर छीन सके, unless it's a case like Sancho wherein Sancho also wants to come. And given the priorities, I think नहीं, Skriniar को लाना बहुत टफ होगा. लपेट लो. 100%. Yeah, I Don't put your think hopes on it. yeah, even I'll say कि don't put your hopes on it. I'll say लपेट लो, take it with a pinch of salt. But क्योंकि इतना वैल्यूएशन आई डोंट थिंक डिफेंडर का वुडवर्ड तो अपनी जेब इतनी ढीली नहीं करने वाला है फॉर श्योर. एंड इवन वी एज अ फैन लाइक वोंट सजेस्ट कि ऐसे टाइम पे कोई ऐसी पैनिक बाइंग होनी चाहिए व्हेन आवर डिफेंस इज रिलेटिवली गुड. So coming to, with that being said, coming to our like final जो हमारे हैं जो काफी ऑब्वियस है, जेडन सैंचो, जिसको हम पहली कैटेगरी में डाल सकते हैं कि बात तो ऑलमोस्ट पक्की है. लाइक ये बहुत र्यूमर सर्कुलेट हो रही है और सैंचो के बारे में जितना पता है उतना कम है. ही प्लेज लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह है. he has scored like how many, yeah, he's got like some 16 assists, 17 goals. He's scoring like every 135 minutes. So I think it's the most obvious thing that's going to happen. If it doesn't happen, I think it's going to be a very big disaster. But the question which I will ask you guys, क्या ब्रूनो जैसा exaggerate होने वाला है जहां हमारी पूरी excitement जा चुकी हुई और eventually he comes, या फिर do you think कि in the upcoming week or later we are going to get this deal finalized? I think I'm quietly confident कि सैंचो का डील हो जाएगा बिफोर द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स, बट इट वोंट हैपन इन द नेक्स्ट वीक. पूरा खींचेगा ये पूरा महीना एंड आखिरी के दिन में कभी ये लोग करेंगे. बट आई थिंक अब थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि 120 मांग रहा है डॉर्टमुंड. आई डोंट नो इफ United will pay that much. I heard rumors about a deal saying 60 million upfront and then 16 add-ons. Quite similar to what Arsenal did for Pepe. उनका तो पूरा ही इंस्टॉलमेंट में ही था 5 साल. लोन, वो तो लोन पे लिया उन्होंने. गरीबी छाई हुई है. वो लोग तो हर साल कुछ 11-12 मिलियन या 20 मिलियन समथिंग देंगे. मे बी इफ दैट डील कैन बी डन वी कैन गेट हिम. बट बॉस अगर सांचो आ गया ना, आई मीन मैं उसका वो देख रहा हूँ यार, रेडार चार्ट कंपैरिजन टू एवरेज वैल्यूज फॉर हिज पोजीशन अलग ही दिख रहा है यार. आई मीन व्हाट द फक. He's some another level. Like that guy is so good. Yeah, he finished like 17 goals, 16 assists. तुम्हें और क्या चाहिए? It's like getting another Bruno on the right wing. Bruno had similar stats. जितने गोल करता है उतने असिस्ट कर लेता है. So yeah, I mean I just want this to get over with. I am quietly confident it will happen, but एक डर सा लगा हुआ है knowing Woodward. Yeah, but knowing Woodward, I think जो क्या कहते हैं कि ट्रांसफर नेगोशिएशन है वो थोड़े इम्प्रूव हुए यूनाइटेड के, क्योंकि ब्रूनो के लिए वी डिडंट ओवरली पेड, व्हिच वाज गुड. आई स्टिल होप कि हम थोड़ा वो 1-2 गेम्स पहले आ जाते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस सीजन में और अच्छी होती, हमारी पॉइंट टैली शायद और बढ़ जाती. हम शायद वो 22 जन को जो मैच हारते शायद हम नहीं हारते. सो दे कुड बी अ लॉट इफ्स एंड बट्स. बट जो सैंचो के लिए लगता है कहीं ना कहीं अभी हमारे पास लेवरेज है टाइम का. लाइक ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन आवर टीम फ्रॉम गेट गो. सितंबर में लीग चालू होने वाला है. सो चेतन, डू यू थिंक जो खींच रहे हैं इसको कि उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, प्लेयर वेस्ट शायद थोड़ा कम करेंगे, शायद ट्रांसफर फी कम करेंगे? आई पर्सनली थिंक दैट्स स्मार्ट अप्रोच, नोइंग द फैक्ट कि अभी वी डोंट हैव नथिंग टू लूज अगर वो थोड़ा लेट भी आता है तो. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Yeah, no, like honestly, like Manu said, मुझे भी यही लगता है कि we will get him before the season starts, but we will get him ऐसे मार के एकदम last day पे
या सेकंड लास्ट डे पे, Yeah. एंड देन विल डू लाइक अ मेगा रिवील ऑफ द प्लेयर, ऐसे कुछ तो होने वाला है. क्योंकि इफ यू बाय हिम नाउ, आई थिंक वुडवर्ड की जो घटिया मेंटालिटी ऐसी है कि चलो अभी ले लिया तो दूसरे प्लेयर्स लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे. बट इफ वी ट्रैक दिस आउट तो एंड में जो भी वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ग्लेजर्स आउट, वुडवर्ड आउट, वो नहीं होंगे. बोलेगा देखो हमने अच्छा प्लेयर डिलीवर कर दिया. यार जब तक उसके घर को आग नहीं लगाई थी, ब्रूनो डील पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ था. उसके घर को आग लगी, एक हफ्ते में ब्रूनो यूनाइटेड शर्ट पहन के फोटो खिंचवा रहा था. ये इस तरह की घटिया सोच को की वजह से मुझे लगता है ये बहुत ही एंड में आएगा. और मुझे ये भी लगता है कि शायद ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, उससे है, बस हम लोग उसे अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि ब्रो वी आर जस्ट वेटिंग टिल द एंड. भाई एक साल से सुन रहा हूँ मैं सांचो, कितना चूतिया क्लब है जिसके नेगोशिएशन इतनी चूतिया है कि मतलब तुम जाके 1.5 साल से एक बंदे को देख रहे हो तो मुझसे बात नहीं कर सकते. पुलिसिच और वर्नर वगैरह को कैसे हैंडल किया है चेल्सी ने. भाई ट्रांसफर विंडो का अभी सोच भी नहीं रहे होते लोग, उनके प्लेयर खड़े होते हैं यार. अरे ऐसा मतलब नेथन एक के साथ र्यूमर आई सिटी की, और Exactly. अगले दिन वो आ गया कि भाई भाई, सिटी में आ गया. क्या हम इतना मतलब तड़प तड़प के निकल करते हैं ना कि पूरा एक्साइटमेंट की पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं. सच में काई हैवर्ट्स हो जाएगा इसके पहले, मुझे लगता है चेल्सी का. तू जो तू होता ना वुडवर्ड, होते पास यूनाइटेड जैसे इतना बड़ा ब्रांड होता, तू क्या करता? जैसे ही फैंस ने वो शुरू किया, जैसे अभी लीक खत्म हुई, सारा ट्विटर अब्लेज हो गया कि यार कौन आ रहा है, उसी दिन अनाउंस खड़ा खत्म. तू सोच कितनी पब्लिसिटी क्लब की फट लेती राइवल्स की कि यार यूनाइटेड इज रियली सीरियस अबाउट द टाइटल. वैसे ही लोग नर्वस हो जाते हैं यार. मतलब जो मेंटल इफेक्ट होता है ना, वो इतना डिफरेंट होता है कि तब यूनाइटेड. अब ब्रूनो आधे सीजन बाद आया, रो के फैंस तो भूल चुके थे उसको. वो बेचारा यूनाइटेड स्टैंड पे वो रो के बेचारा मर गया. वो क्या नाम है, मार्क गोल्डब्रिज. यस यस. उसने जॉब नहीं छोड़ा, वो कह रहा था वो छोड़ देगा स्ट्रीम करना अगर समर में. यार दिस इज सो बैड यार विद अस. ये प्लेयर साफ साफ चाहिए यार, दे दो यार 100 120 40 दे दो यार. अरे ऐसा नहीं था, पता है हमारा, वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट अ प्लेयर, वी जस्ट गेट द प्लेयर. वो तब डेविड गिल था यार. हाँ तो मतलब या सिनेरियो अलग था उस टाइम पे. बट आई थिंक ओले ने अपना पॉइंट प्रूव किया है कि जो जो यू नो चैंपियंस लीग पोजीशन आ गई है, थर्ड रैंक पे लेकर आ गया है. वो भी तब जब आधे सीजन में लिंगार्ड और परेरा आज नंबर 10 खेल रहे थे. मैं अपने दोस्त के साथ आज बहस कर रहा था, मैं यही बोला था कि ये जो नंबर 3 है वो लीग जीतने लायक है, क्योंकि आधे से ज्यादा सीजन लिंगार्ड और परेरा नंबर 10 में खेले हैं. मुझे समझ नहीं आता ओले को इतना प्रूव करने की क्या जरूरत है. वो फ्रैंक लैम्पार्ड कुछ किए बिना बैठे बैठे हग रहा है और उसके प्लेयर रेडी खड़े हैं नेक्स्ट सीजन के लिए. और वो भी कौन? जीएच, वार्नर और हैवर्ट्स. कैन यू जस्ट इमेजिन? जीएच, वार्नर, हैवर्ड. इट्स लाइक यार तू फुट 20 तूने गेम खरीदी, तेरे बाप ने 1 बिलियन दे दे कि भाई जा खरीद ले सारे कार्ड बिना देखे कि तू कैसा खेलता है फीफा. इट्स लाइक दैट सिचुएशन. तो ओले को इतना प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है यार? क्योंकि हम जानते हैं हमारे, क्योंकि तीन मैनेजर को सैक कर चुके हैं, तो वी ऑल नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज. बट द थिंग इज कि सब हेल्पलेस हैं. सो इवन ओले इज लाइक यार अपनी जॉब बचानी है, प्रूव तो करना ही पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक ओले इज डीलिंग विद पैथेटिक बॉस, दैट्स इट. और ट्रांसफर सीजन इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल फॉर आई थिंक यूनाइटेड. मैनेजर के ना सारे बाल ऐसे सफेद हो जाते हैं. ट्विटर डिलीट कर रहा हूं. पता नहीं ऊपर से क्या उन लोग को मिक्स सिग्नल्स मिलते रहते होंगे, क्या वुडवर्ड बोलता है, क्या ग्लेजर्स बोलते होंगे. एंड दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट ट्रांसफर सीजन जब हम लोग रोनाल्डो के साथ लिंक नहीं हुए यार. एग्जैक्टली खुशी की बात है यार. मतलब खुशी की बात है कि अब इस बार नहीं कर रहे हैं. तू लिख ले, अभी कल ही आ रहा होगा रूमर रोनाल्डो. तूने बोल दिया यहाँ पे, तूने बोल दिया और कल रूमर आ रहा है. रोनाल्डो की रूमर ना धीरे धीरे जैसे स्नाइडर के साथ जैसे रूमर खत्म हुई थी ना, वो उसकी एज होने के साथ साथ रोनाल्डो के साथ भी ऐसे ही होगा. ये राज भी उनके साथ ही दफन हो गया. उनके साथ ही दफन हो गया. विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन था. आई होप यू लाइक दिस वीकली कंटेंट व्हिच वी हैव स्टार्टेड, द ट्रांसफर गपशप. Let us know if you want to, if you have some suggestion about what else should we, create our content on. With that being said, thank you everyone for watching. Like, share and subscribe. Shaitan's out.